مغفرت اور جہنم سے آزادی کی رات، 1000 راتوں سے افضل لیلۃ القدر کی تلاش۔ آج ملک بھر میں رمضان المبارک کی 27ویں شب منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں عبادات کا خصوصی اہتمام، بیشتر مقامات پر تراویح میں ختم قرآن کی تقاریب۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں محفل شبینہ کا آغاز، محفل 29ویں شب تک جاری رہے گی۔ قرآن سننے اور برکتیں سمیٹنے عوام کی بڑی تعداد امنڈ آئی۔ مسجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ عید پر خواتین کے جاذبے نظر آنے کے جتن، ملبوسات اور میچنگ کے لیے بازاروں کے چکر۔ مہنگائی کے باعث مصنوعی زیورات کی مانگ میں اضافہ۔ حافظ آباد کے نوجوانوں کو بھی خوبصورت نظر آنے کا جنون، بیوٹی سیلونز کا رخ کر لیا۔ ارب پتی افراد کے لیے بیل آؤٹ، غریبوں کے لیے مہنگائی اور ٹیکسز۔ یہ ہے عمران کا نیا پاکستان۔ بلاول نے تیر چلا دیے۔ پروفیشنل لوٹوں کو دوہرے سیاسی معیار کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ مستقل مزاجی کیا جانے؟ فواد چودھری پر وار، محسن داوڑ اور علی وزیر دہشت گرد نہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے سیاسی جماعتیں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ حکومت نے صرف ملکی قرضوں میں اضافہ کیا ہے۔ لیگی رہنما جاوید عباسی کی آج نیوز کے اینکر رانا مبشر سے گفتگو۔ این آر او نہیں ملے گا، سینیٹر فیصل جاوید کا جواب۔ کہا سرے محل میں آف شور ڈرلنگ سے بڑا خزانہ ملا ہے۔ عمران کہتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھے تو لیڈر چور ہوتا ہے۔ سابق گورنر محمد زبیر کی تنقید۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، عوام کو فائدہ کیوں نہیں دیا گیا؟ آج نیوز کے پروگرام جی فار خریدا میں گفتگو۔ وفاقی وزیر زرتاج گل کی بہن کو ڈائریکٹر نیکٹا بنا دیا گیا۔ شبنم گل لاہور کالج برائے خواتین میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ انتخاب میرٹ پر ہوا۔ ترجمان نیکٹا کی وضاحت۔ کہا انتخاب کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ شبنم گل انتہا پسندی اور دہشت گردی پر متعدد مقالے لکھ چکی ہیں۔ جاسوسی کے مرتکب 3 افسران کو سول جیل حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا ٹویٹ۔ 2 کو سزائے موت اور 1 کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردی، پاک فوج کی گاڑی پر فائرنگ، سپاہی عامل شاہ شہید ہو گئے۔ گاڑی علاقہ بویا میں معمول کے گشت پر تھی۔ شمالی وزیرستان میں 1 ماہ کے دوران 5 نوجوان شہید اور 31 زخمی ہوئے۔ پولیو وائرس کراچی میں پنجے گاڑنے لگا۔ پہلی بار 10 سے زائد مقامات پر وائرس پایا گیا۔ صدر، گڈاب، گلشن اقبال، کورنگی، لانڈی اور دیگر علاقے شامل۔ تمام مقامات پر وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کا علاقہ بنو پولیو کا گڑھ بن گیا۔ 11 بچوں میں وائرس کی تصدیق۔ فوکل پرسن بابر بن عطا کا اظہار تشویش۔ کہا پولیو ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ملک دشمن ہیں۔ والدین سے قطرے پلوانے کی اپیل۔ لتوڈیرو میں HIV کے مزید 9 مریض سامنے آ گئے۔ تعداد 742 ہو گئی، 607 بچے شامل۔ ڈاکٹر سکندر میمن کا کہنا ہے کہ آج 317 افراد کی بلڈ اسکریننگ کی گئی۔ جام شوروں میں طوفان کا شور۔ لاکھڑا کول فیلڈ میں طوفانی برسات، 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے۔ سول اسپتال حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ بھکر میں مالی کا جعلی اکاؤنٹ نکل آیا۔ عاشق حسین کے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ 83 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ عاشق حسین گورنمنٹ ڈگری کالج دریا خان میں مالی ہے۔ اکاؤنٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی اپیل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کیا ہے کہ 3 سزا یافتہ افسران کو سول جیل حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تینوں افسران کو 23 مئی کو سزا سنائی گئی تھی۔ بالکل، آپ کو اسام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کیا ہے کہ 3 سزا یافتہ افسران کو سول جیل حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تینوں افسران کو 30 مئی کو سزا سنائی گئی تھی۔
बिगड़ी बनाने और रब को मनाने मुसलमान मसाजिद में सरबा सुजूद हैं। मसाजिद में खुसूसी इबादत और नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फैज़ान जलीस इस वक्त कराची की एक मस्जिद फैज़ान मदीना में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी फैज़ान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी आज शब कदर इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। आज की इस बाबरकत फजीलत वाली रात में जो है वो मसाजिद और दीगर खुले मुकामात पर खुसूसी महफिल का एहतमाम किया गया है। आज की बाबरकत रहमत और लैलतुल कदर वाली इस रात में जो है वो खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है और कुरान करीम का नुज़ूल भी इसी रात में हुआ और कुरान करीम में जो है वो आज की इस रात को हज़ार रातों से बेहतर करार दिया गया है। इसीलिए आज की इस रात के लिए जो है वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में फ़र्ज़दान इस्लाम जो है वो एहतिकाफ़ करते हैं इस रात को तलाश करने के लिए और इस रात में जो है वो खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है क्योंकि रमज़ान मुबारक की काफ़ी अहम तरीन और सबसे बड़ी ये रात समझी और जानी जाती है। इसीलिए खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ मसाजिदों पर दीगर मकामात पर जो है वो सलातुन तस्बीह की नमाज का भी एहतमाम किया जाएगा। इज्तिमाई इबादत का और दुआओं का भी एहतमाम जो है वो किया जाएगा। रहमत और लैलतुल कद्र वाली इस रात में जो है वो इबादत का सिलसिला ताहल जारी है। जी, हज़ार रातों से अफजल रात लैलतुल कद्र के मौके पर बंदगान खुदा मग़फ़रत के तलबगार हैं। लाहौर के शहरी दाता दरबार कोई मस्जिद में इबादत में मसरूफ़ हैं। इस वक्त वहाँ क्या मनाजिर हैं, जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ फैसल तारिक से। फैसल तारिक, इस वक्त लाहौर की मसाजिद में तो यकीनी तौर पर रूह परवर मनाजिर देखे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए दाता दरबार की, तो किस तरह के इस वक्त वहाँ पर मनाजिर देखे जा सकते हैं? रहमतों और बरकतों वाले महीने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 5 ताक़रातें ऐसी रखी गई हैं जिनमें जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। 5 ताक़रातों में लैलतुल कदर की रात भी होती है। इस रात का जो एहतमाम है वो तमाम फ़र्ज़ंदाने जो इस्लाम है वो करते हैं। मैं इस वक्त हज़रत अली हजवेरी के दरबार पर मौजूद हूँ। यहाँ भी ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से भी जो फ़र्ज़ंदाने जो इस्लाम है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। नमाज तरावी के बाद से लेकर जो है फजर की नमाज तक यहाँ पे एहतमाम किया गया है। दाता दरबार जो है इसको भी खूबसूरत लाइटों के साथ सजाया गया है। इसके अलावा जो दीगर मसाजिद हैं उनको भी रंग बिरंगी लाइटों बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया है। आज की रात गुनाहों से बख्शिश की रात होती है। तमाम जो तौहीद इस्लाम है, फर्जंदान जो इस्लाम है, वो अल्लाह के हुजूर गिर गिरा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। जी, मुल्क भर में रमज़ान की 27वीं शब मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। नवाफिल, ज़िक्र, दुआओं के साथ साथ दीगर इबादात का खुसूसी एहतमाम किया गया है। शबीने की महाफिल भी सजाई गई हैं। फैसल मस्जिद में महफिल शबीना का इनेकाद 29वीं शब तक जारी रहेगा। मस्जिद को बरकी कुमकुमों से भी सजाया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से आसिफ नवीद। जी आसिफ। जी, मुल्क भर की तरफ वाक़ई दारुल-हुकूमत में भी 27वीं शब की मुनासबत से खुसूसी महफिल और इबादत का एहतमाम किया गया है। चंद जो मसाजिद है उसमें खुसूसी इस वक्त इबादत का सिलसिला जारी है, जहाँ पर लोग ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं। उसके साथ साथ नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, कुरान ख़वानी की जा रही है और अपने अपने तर्ज पे जो है वो लोग इबादत कर रहे हैं। और सबका मकसद यही है कि आज की रात नेमतों को, रहमतों को अल्लाह ताला की समेटा जा सके। आज सबसे बड़ा जो इज्तिमा है वो फैसल मस्जिद में है। महफिल शबीना का इनेकाद किया गया है, 4 रोज़ तक जारी रहता है। 29वीं रमज़ानुल मुबारक की शब तक जारी रहेगा। आज महफिल शबीना में भी काफ़ी दूर दूर से लोग जो है वो फैसल मस्जिद में आए हुए हैं और उनमें ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है, लेकिन उमूमन जो शहरी ख़वातीन है वो अपने अपने घरों पर इबादत कर रहे हैं। तो एक जो है जो खुसूसी माहौल बना हुआ है बिलखुसूस फैसल मस्जिद और दीगर जहाँ महफिलें इनेकाद किया गया है। और अब रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहां मुसलमान इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे राजा हबीब से बात करते हैं। जी राजा हबीब, क्या मनाजिर देख रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, 1000 महीनों से बेहतर मागफरत, रहमत और अजमतों वाली रात शब कदर के मौका पर शहर भर की मसाजिद में इबादत, रियाजत, ज़िक्र, अज़कार, दुरूद व सलाम, इस तरह नवाफिल की अदायगी की रूह परवर महफिल का सिलसिला जो है वो जारी है। अहलियान इस्लाम जो है वो यहाँ पर नवाफिल अदा कर रहे हैं, सजदा रेज़ होकर, गिड़गिड़ा कर जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर रहमत के तलबगार है। यहाँ इबादत और रियाजत का ये सिलसिला जो है वो नमाज इशा से शुरू हुआ है, जो नमाज फजर तक जारी रहेगा। आज शब कदर के मौका पर शहर में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। यहाँ मसाजिद के बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है और इसी तरह पुलिस का गश्त जो है वो भी मामूल से ज्यादा है। जी, गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करने की रात लैलतुल कद्र की तलाश खैरपुर में भी जारी है। खैरपुर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम सुमरू, इनसे मज़ीद सूरत हाल जानते हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त मैं जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि आज
जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में ख़त्मुल कुरान पाक था और 27वीं शब की रात है। यहाँ पर जो है लोगों का आना शुरू हो गया। यहाँ पर जो है लोग अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपने गुनाहों के बख्शिश के लिए मसाजिद में आना शुरू हो गए। लोग यहाँ पर नफली एतकाफ में बैठे। वैसे भी ये जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर जो है लोग एतकाफ में बैठे, अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपने गुनाहों को बख्शने के लिए मस्जिद में इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। भारी तादाद में रेंजर्स और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जी, मुल्तान में भी लैलतुल क़द्र की मुनासबत से खुसूसी महफिल का एहतमाम किया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नासिर ज़हीर से। नासिर ज़हीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहरुख मीनार मज़ार पर, जहाँ पर जो है मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी खुसूसी इबादत का जो है वो एहतमाम किया गया है। नमाज तरावी के बाद जो है सलात व तस्बीह का एहतमाम किया गया और खुसूसी दुआएं की जा रही हैं पाक परवरदिगार से कि वो अपनी रहमत जो है वो अपने इबादत गुजारों के ऊपर करे और अपनी गुनाहों की बख्शिश जो है आवाम की तरफ से वो भी मांगी जा रही है। शहरों की खासी तादाद जो है इस वक्त इबादत के अंदर मशगूल है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आज की खुसूसी इबादत का जो एहतमाम है वो इसमें किस कदर मशगूल नजर आ रहे हैं। जी बताइएगा कि आज खुसूसी इबादत का माह रमज़ान वैसे ही बाबरकत महीना होता है, आज खुसूसी बाबरकत रात भी है, तो इबादत का खूब मज़ा आ रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। लैलतुल क़द्र की रात है और जो है ना तरावी के बाद सलात तस्बीह का एहतमाम किया जा रहा है और अल्लाह ताला को राज़ी करने का एहतमाम किया जा रहा है। बिल्कुल, नफली इबादत जो है वो की जा रही है। आप बताइएगा कि इबादत के अंदर मशगूल है, खुसूसी तौर के ऊपर जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह जी दुआएं भी की जा रही हैं और दो ख़त्म, इसके अलावा ज़हर ख़त्म लोग कुरान भी पढ़ रहे हैं और इसके अलावा तस्बीहात, इसी तरह सब लोग इसमें मशगूल हैं। आज क्योंकि 27वीं की रात है तो इस सिलसिले के अंदर मुल्तान की मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जो है खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है और इस सिलसिले के अंदर ख़त्म कुरान पाक का भी एहतमाम किया गया और बाद मसाजिद के अंदर जो है वो तमाम रात भर जो है वो इबादत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और सुबह फजर के पढ़ने के बाद ही शहरी जो है वो अपने घरों में जाकर सोएंगे। जी, हाफिजाबाद में भी 27वीं शब के मौके पर मसाजिद में ख़त्म कुरान की महफिल का सिलसिला जारी है, जो सहरी तक जारी रहेगा। आज न्यूज़ के नुमाइंदे अंजुम सुहेल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अंजुम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रहमतों, बरकतों और फजीलत वाले माह सियाम की सबसे अफजल और बाबरकत रात 27वीं रात है और आज इस 27वीं रात के मौका पर हाफिजाबाद की मसाजिद में ख़त्म कुरान पाक की महफिल का सिलसिला जो है वो जारी है और इन महफिल का जो सिलसिला है वो सहरी तक जारी रहेगा। यकीनन शहरियों की एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं इन महफिल में शरीक है, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, वो सभी इन महफिल में शरीक है। ज़िक्र इज़कार किया जा रहा है, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, जबकि नवाफिल भी अदा किए जा रहे हैं। मुकामी उलमाए कराम जो है वो माह सियाम और बिलखुसूस आज की 27वीं रात की अहमियत और फजीलत बारे जो है वो रोशनी डाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मसाजिद को बड़ी खूबसूरती से बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया है, जबकि इन महफिल के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं।